Hello students, welcome to the lecture number 8 of ionic equilibrium. In today's lecture, we are going to study the relationship between pH and pOH. Okay? And then later on, we are going to solve 3 sums on this concept. Okay? Now, in the previous lecture, we studied the basic formula or the basic definition of what is pH and what is pOH. So let me just write it. As we know that pH is negative log to the base 10 of concentration of H plus ions. Alright, and pOH is negative log to the base 10 of concentration of OH minus ions in the solution. In case of H plus ion, you can also write HCO plus ion. Okay, now the very important thing, we already know that, we know that at 25 degrees Celsius, the ionic product of water, जिसको हम क्या बोलते हैं, KW, it is equal to the product of concentration of H plus ion into OH minus ion, and बच्चों को कितना था, yes, 10 raised to minus 14. हमें क्या करना है, consider H plus into OH minus is equal to 10 raised to minus 14. इस इक्वेशन में आपको सिंपल लॉग लगा देनी है दोनों साइड. टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों log to the base 10 of concentration of H plus log to the base 10 of concentration of OH minus is equal to log to the base 10 of 10 raised to minus 14. बच्चों आपको क्या करने का है, इस इक्वेशन को पूरा इंटायरली नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो. सो इट वुड बी इक्वल टू negative log to the base 10 of H plus ion minus या फिर negative log to the base 10 of OH minus ion, and this would be equal to negative log to the base 10 of 10 raised to minus 14. Now what is negative log to the base 10 of H plus ion? It is equal to pH. Alright, तो ये हो गया आपका pH. What is negative log to the base 10 of OH minus ions? It is pOH. तो ये हो जाएगा plus pOH. Now this would be equal to, बच्चों 10 raised to minus 14, minus 14 यहाँ नीचे आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, सो pH plus pOH it is equal to 14. Very important equation, pH plus pOH is equal to 14. If you find this video slow, आप इसको 1.75 या नॉट 1.75 इंटू 1.5 की भी स्पीड से देखोगे तो भी चलेगा, 7.5 से भी देखा तो भी चलेगा. ठीक है, ओके. Important thing. Now students, one more condition. Now this is proved. Okay, so pH, what is the relationship between pH and pOH? Then the pH plus pOH it is equal to 14. Let us just go back to this equation. Now we know that KW it is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus ion, it is equal to 10 raised to minus 14. Now तीनों ही जगह log apply कर दो. Negative log, so it would be negative log to the base 10 of KW, which is equal to negative log to the base 10 of H plus, negative log to the base 10 of OH minus, which is equal to negative log to the base 10 of 10 raised to minus 14. Now जैसे कि pH is जैसे कि negative log of H plus is pH, similarly negative log of KW it is equal to pKW. Very important, negative log of KW it is equal to pKW. Again, negative log of H plus is pH plus negative log of OH minus it is pOH, and sum of pH plus pOH will be equal to minus 14 का log यहाँ पे आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 14. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने का है कि PKW
pKw, it is equal to pH plus pOH which is equal to 14. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया हुआ है दैट pKw की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए pKw इज इक्वल टू pH प्लस pOH विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 14. ऑलराइट, ओके. सो एक सिंपल सा सम देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है द pH ऑफ 10⁻² मोलर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यू हैव टू कैलकुलेट. What are you supposed to calculate? The pH of 10⁻² molar, M for molar, magnesium hydroxide. Now, first of all, you should know that magnesium hydroxide, it is a strong base. It is a strong base. अच्छा, तो strong base की खासियत क्या होती है कि उनका degree of dissociation, that is alpha. Alpha it is equal to 100%, right? So, what reaction will you write? Mg OH twice, it will undergo 100% dissociation to give out Mg2 plus 2 moles of OH minus. अब बच्चों यहाँ पे रेशियो क्या बन जाता है इनका, नंबर ऑफ मोल्स का 1. अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल लोगे तो वो 100% डिसोशिएट होके आपको 1 मोल मैग्नीशियम आयन देगा एंड 2 मोल्स ऑफ OH minus ion. But the concentration of magnesium hydroxide, initial concentration given to us is 10⁻². So अगर आप इसकी concentration 10⁻² मोलर है तो आपको फिलहाल इससे तो हमको मतलब नहीं है क्योंकि pH में आयंस कैटायंस एंड आयंस नहीं चाहिए. हाँ, आपको क्या चाहिए, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन. तो एक से अगर 2 मिल रहा है तो 10⁻² से इसका डबल मिलेगा आपको, 2 × 10⁻² मोलर. सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. सो बच्चों pH के पहले देखो सीधी बात है, यहाँ पे बेस दिया गया है तो बेस से आपको पहले POH मिलेगा. ठीक है, pH पे आप बाद में पहुँचोगे. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज pH. POH it is equal to negative log to the base 10 of concentration of OH minus ions, right? So this would be equal to negative log to the base 10 of OH minus ion की concentration हमें मिली है 2 × 10⁻² मोलर. ये लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, क्या करेंगे बच्चों, लॉग ऑफ m × n इज log m प्लस log n. तो हमें क्या करना है, नेगेटिव को जरा बाहर रखते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा log 2 टू द बेस 10, ओके, एंड प्लस log टू द बेस 10 ऑफ 10⁻². ठीक है, सो ये हो जाएगा नेगेटिव log 2 बच्चों कितना होता है 0.3. ये 10 टू द बेस 10 हो गया 1, -2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा. ठीक है, नाउ माइनस 2 - 0.3 कितना होगा, वेरी गुड 1.7. तो आपका POH आया 1.7 प्लस 1.7. सो POH इज 1.7. बट we don't have to calculate the POH, we have to calculate the pH. So again ये relationship आपके काम में आएगा that pH plus POH it is equal to 14. So therefore pH will be equal to 14 minus POH. So that is 14 minus 1.7. ठीक है, और आंसर यहाँ पे आएगा आपको 12.3. सो दिस इज द pH ऑफ द सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये बेस है और बेस का pH हमेशा 7 के ऊपर आएगा. तो आपका जो pH है दैट इज ग्रेटर देन 7, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. ऑलराइट, ओके. नाउ अगले सम की तरफ प्रोसीड करते हैं which is an kind of exceptions. So exceptions पे ज़्यादा फोकस करो, ध्यान दो, मार्क्स वहीं से मिलेंगे आपको. Okay, the next question is very important. Find out the pH of 10⁻⁻8 molar NaOH. ठीक है, ये आपको pH पूछा गया है. ठीक है, नाउ
सिंपल, क्या करना है, हमें पता ही है NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका 100% क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। क्या देगा आपको, Na प्लस प्लस OH माइनस। नाउ द रेशियो इज 1:1:1। बच्चों pH निकालने हैं, और आपको अगर बेस दिया गया है तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, POH, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू pH। सो 1 से यहाँ पे रेशियो 1 ही है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ दिया है, तो आपको OH भी कितना मिलेगा, 10⁻⁸। दैट मीन्स concentration of OH minus ion, it is equal to 10⁻⁸ molar. So we have to calculate POH, which will be equal to negative log to the base 10 of concentration of OH minus ions in the solution. Now that would be equal to negative log to the base 10 of 10⁻⁸, और आपको पता है कि यहाँ पे POH आएगा 8, ठीक है। और ये हो गया बॉक्स। फिर हमको क्या निकालना है, pH निकालना है। सो वी नो दैट pH प्लस POH इट इज इक्वल टू 14। सो बेसिकली pH हो जाएगा 14 माइनस POH, सो दैट वुड बी इक्वल टू 14 माइनस 8, अगैन दिस इज 6। सो आपको pH की वैल्यू 6 आएगी। लेकिन 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 बेसिक सोल्यूशन के लिए pH 6 आना कुछ सही नहीं लग रहा है, 7 के ऊपर आना चाहिए था pH। बेस के लिए pH 6 नहीं आ सकता। सो इसका मतलब, मैं बहुत प्यार से यहाँ पे कट करने वाली हूँ, आपका ये आंसर, ये जो मेथड है या फिर ये जो आंसर है, ये गलत हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा मत सोचना कि मेरे से गलती हो गई, पर मैंने ये पर्पजली किया, आपको समझ में आना चाहिए। सो दैट इज दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेयर यू कैन आप 6, और ऑप्शन में डेफिनेटली 6 आंसर दिया रहेगा, एंड यू विल, इफ यू मार्क दैट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बच्चों ऐसे केस में क्या करना होता है, जब भी, ठीक है, नोट वट एवर आई एम टेलिंग यू ऑल, whenever the concentration is given, आपके एसिडिक सोल्यूशन हो या फिर बेसिक सोल्यूशन हो, एसिडिक सोल्यूशन हो या फिर बेसिक सोल्यूशन हो, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ दिया है, 10⁻⁶ दिया है, नॉट 5, 6, 10⁻⁶ दिया है, 10⁻⁷ दिया है, एंड 10⁻⁸ दिया है। एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन हो, अगर कॉन्सेंट्रेशन आपको 10⁻⁶, -7, -8 दिया हुआ है, और आपको आंसर एसिडिक के लिए हो सकता है pH 7 से ज़्यादा आए, और बेस के लिए क्या हो सकता है, pH जो है वो 7 से कम आए, जैसे कि यहाँ पे आया है। उस केस में बच्चों NaOH जब सोल्यूशन बनाते हैं हम, तो डेफिनेटली वाटर की ज़रूरत होती है। मतलब ये जो सोल्यूशन जब तैयार किया तो पानी में ही तैयार करते हैं ना हम, और आपको तो पता ही है कि पानी की भी टेंडेंसी होती है ऑटो प्रोटोलाइसिस, वाटर अंडरगोज ऑटो प्रोटोलाइसिस, दैट मीन्स वाटर भी डिसोशिएट करता है टू गिव आउट H+ आयंस एंड OH- आयंस। दैट मीन्स in this case, first of all note this, whenever the concentration, CONC's concentration is given 10⁻⁶, 10⁻⁷, or 10⁻⁸, then consider the concentration of H+ ions or concentration of OH- ions given by the water also, given by the water also। इसका मतलब पानी ने भी, वाटर ने भी हमको NaOH तो OH- आयन दिया है, कितना दिया, 10⁻⁸ मोलर। लेकिन अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है, तो आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही अज्यूम करना है, ठीक है। नाउ ध्यान दो ज़रा। सो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, अब सोल्यूशन में जो OH- आयन की काउंटिंग है वो 2 सोर्सेज से आ रही है। एक तो NaOH ने दिया, सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग OH- आयंस फ्रॉम बेस, प्लस यू विल ऑल्सो हैव टू ऐड OH- आयंस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम वाटर, ऑल राइट, ठीक है। सो ध्यान दो यहाँ पे। So total concentration of OH- ions in the solution will be equal to concentration of OH- ions from the base। base से आपको कितना मिला,
10⁻⁻8 मोलर प्लस, अच्छा अब वाटर से कितना मिलेगा आपको, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता ही है ना कि KW होता है H प्लस इंटू OH माइनस N विच इज इक्वल टू 10⁻14. सो दैट मीन्स इंडिविजुअली एक का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 होता है. तो वाटर से जो OH माइनस एन्स आपको मिलेंगे वो होगा 10⁻7 मोलर. इज दैट वेरी मच क्लियर? अच्छा अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 10⁻8 कॉमन ले ली, ठीक है. तो इधर आ जाएगा 1 और यहाँ पे बच्चों क्या लिखोगे, कैन आई राइट 10, क्यों 10⁻8 इंटू 10⁻7 हो जाएगा. तो आपको मिलेगा 11 इंटू 10⁻8 मोलर. So this is the actual concentration of OH minus ions in the solution. Alright, अब क्या करना है, चलो OH minus ion का concentration लग गया है, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं. Let me just use sketch pen. Okay, बच्चों please remember formula of POH is negative log to the base 10 of concentration of OH minus ions in the solution. So which would be equal to negative log to the base 10 of 11 into 10⁻⁻8, ठीक है, which is equal to नेगेटिव को आप बाहर रखो तो अंदर आ जाएगा log to the base 10 of 11 एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस log to the base 10 of 10⁻⁻8, ठीक है. नेगेटिव बच्चों log of 11 होता है 1.04 एंड यहाँ पे -8 इधर आ जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. नाउ 1.04 माइनस अगर 8 करोगे तो 14 - 8 हो जाएगा यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा 9, ठीक है. एक सेकेंड, सॉरी, 8 - 1.4 करना है, आई एम सॉरी. 8 - 1.04 so बच्चों 8 - 1.04 will give you ठीक है, ये हो गया 6 and this would be 9 and again this would be 6.96, ठीक है. So 8 - 1.04 would be -6.96. So that would be equal to plus 6.96. So that means the POH for the solution is 6.96. Now you have to do is calculate the pH. So pH plus POH, which is equal to 14, the relationship which we proved. So therefore pH will be equal to 14 minus POH. So that is 14 minus 6.96 and let us just find out 14 minus 6.96 ये आपका हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा आपका 990 and then it would be okay 13, तो ये हो जाएगा 7. So your answer would be 7.04 and yes which is greater than 7. आपका pH जो है वो क्या आ रहा है, 7 से बड़ा आ रहा है और यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए. सी बच्चों आपके मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे ऑप्शन में 6 भी था और 7.04 भी था. तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो pH है वो आप 6 पे ही पहले मार्क कर देते, बट यू हैव टू रिमेंबर, कीप दिस इन योर माइंड कि बेस के लिए pH 7 से ज़्यादा 7 से कम नहीं हो सकता और एसिड के लिए pH 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता. सो pH यहाँ पे देखो 7.4 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 7. दैट मीन्स दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर NaOH solution. Alright, I hope all the sums are very much clear. ठीक है. Students, do make notes of all the sums and all the theories which we are studying over here. All the sums are very much important. Keep reading, keep studying. Thank you very much.